Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Arthur and the Sword. Sword means talwar. Once there was a great king in Britain named Arthur Pendragon. When he died, a dispute arose about who should be the king next. Dispute means vivad. King Arthur had apparently left no son to succeed him, and the different knights, who were like princes, each wanted the kingdom for himself. ब्रिटेन के राजा जो अथर पेनड्रैगन थे, वो उनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद डिस्प्यूट हो गया सब में कि अब जो नेक्स्ट राजा है वो कौन होगा, क्योंकि किंग अथर के कोई बेटा नहीं था. अब जो नाइट्स थे, जो प्रिंसेस की तरह से थे, उन्होंने हर किसी ने सोचा कि शायद वो साम्राज्य अब उनको मिल जाएगा. बट किंग अथर डिड in fact have a son whose name was Arthur. No one knew of him, for he had been taken away secretly while he was still a baby by a wise old man called Merlin, for fear of the malice of wicked knights. Malice बुरी इच्छा जो रखते हैं, जो अच्छा नहीं सोचते हैं किसी के बारे में. Arthur had been brought up in the family of a certain Sir Ector, a noble knight and one who had loved King Arthur well. Arthur thought Sir Ector was his father, and he loved Sir Ector's son, Sir Kay, with the love of a brother. King Arthur की डेथ हो गई थी, लेकिन उनका बेटा था. उसका नाम क्या था? आर्थर. ये बात किसी को भी पता नहीं थी, क्योंकि उसको सीक्रेटली जब वो छोटा सा बेबी था, उसको जो उन्हीं के राज्य का नाइट था सर एक्टर, उसके वहाँ भेज दिया गया था, क्योंकि जो और विकेड नाइट्स थे उनकी जो बुरी इच्छा हो सकता है कि वो उसको मार देते, तो उन सब से बचाने के लिए उसको जो सर एक्टर जो नोबल नाइट था उसके वहाँ भेज दिया गया था. अब आर्थर को ये पता था कि सर एक्टर जो हैं उसके फादर हैं, और जो उनका दूसरा बेटा था सर के, आर्थर उनको बिल्कुल अपने भाई की तरह से प्यार करता था. Soon something had to be done to determine who was to be king, because the knights and princes could not be kept in check any longer. Merlin made the archbishops of Canterbury send for them all to come to London. It was Christmas time, and in the great cathedral a solemn service was held, and prayer was made to God that some sign should be given to show who the rightful king was. अब उनको न्यू राजा जो है जल्दी से जल्दी अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नाइट्स के ऊपर या जो और लोग हैं उनके ऊपर उसको छोड़ा नहीं जा सकता था. तो मर्लिन ने क्या करा, उसने जो है, मर्लिन कौन था, मर्लिन ने आर्क बिशप को, जो कैंटरबरी का आर्क बिशप था, उसको भेज करके सबको लंदन बुलवा लिया, और क्रिसमस के दिन जो है एक प्रेयर की गई, और प्रेयर करने के बाद भगवान से ये पूछा गया कि वो उसको कुछ ऐसे साइन दे, कुछ ऐसे इंडिकेशन दे कि जिसके थ्रू से वो एक सही राजा जो उस गद्दी के लिए हो सकता था उसको चुने. When the service was over, there appeared a strange stone in the churchyard against the high altar. It was a great white stone like marble, with something sunk in it that looked like a steel anvil, and in the anvil was driven a great glistening sword. Glistening means चमचमाती हुई, चमकती हुई. The sword has letters of gold written on it, which read, "Whosoever pull out this sword of this stone and anvil is rightly king, born of all England." अब क्या हुआ, जब प्रेयर ओवर हो गई चर्च यार्ड में, तो वहाँ पर क्या था, एक हाई ऑल्टर था. वहाँ पर हाई ऑल्टर में
एक वाइट स्टोन लाइक मार्बल था जिसमें एक स्टील की एनविल बनी हुई थी और उस एनविल में एक चमचमाती हुई स्वॉर्ड थी और उस स्वॉर्ड में गोल्डन लेटर से लिखा हुआ था कि जो कोई भी इसको यहाँ से खींच के निकालेगा वो ही यहाँ का राइट किंग बनेगा, वो ही इस इंग्लैंड के लिए सही राजा होगा। All the knights who had gathered there wondered at the strange sword and its strange writing, and when the archbishop himself came out and gave permission, many of the knights tried to pull the sword from the stone, hoping to be the king, but no one could move it even a hair's breadth. Hair's breadth means कि बाल के बराबर की भी चौड़ाई, वो वहाँ से मूव नहीं कर पाए। जब सारे नाइट्स आए, सब ने कोशिश करा। जो आर्क बिशप था उसने भी अपने आप में जो है प्रॉमिस कर दिया था कि इसमें से जो ऐसा करेगा उसको बना दिया जाएगा, लेकिन कोई भी उसको वहाँ से हिला नहीं पाया। He is not there, said the archbishop, that shall achieve the sword, but doubt not, God will make him known. Any man may try his skill at withdrawing the sword at 12th day, but until that day, let all be patient, and until then we shall appoint certain knights of pure fame, go guard the stone. अब बिशप ने क्या कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन इसका हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पर आएगा अपने स्किल शो करेगा, स्वॉर्ड को यहाँ से विड्रॉ करके उसको हम यहाँ पर यहाँ का राजा बना देंगे। The archbishop then went his way with a joyful heart, and he arranged that on New Year's Day there should be jousts and tournaments and other fine events, so that the knights and the common people should be kept together till the king should be revealed. Jousts means fights. तो आर्क बिशप ने क्या डिसाइड करा कि अब इसके बाद जो है न्यू ईयर डे के दिन जो है फिर टूर्नामेंट होगा, फाइट्स होगी, किसके लिए? उस फाइन इवेंट्स के लिए कि कौन यहाँ का राजा बनेगा। एंड द नाइट्स एंड द कॉमन पीपल जो भी हैं वहाँ पर वो सब आकर उसको ट्राई करेंगे जब तक कि जो राजा है वो रिवील होता है। ऑन न्यू ईयर्स डे द रोड्स वर फिल्ड विद अ थ्रॉन्ग ऑफ नाइट्स एंड कॉमन पीपल. With the throng rode Sir Ector and his son Sir Kay, who had just been knighted, and young Arthur, his adopted son, who was but a boy. अब न्यू ईयर डे के दिन क्या हुआ? सारे नाइट्स और कॉमन पीपल सब वहाँ पर आए। सर एक्टर, उनका सन सर के, यंग अर्थर जो अडॉप्टेड सन था वो भी वहाँ पर आया। When they reached the grounds where the tournament was to be held, Sir Kay found that he had left his sword behind in castle where they had spent the previous night. He asked young Arthur to fetch it for him. अब जब वो वहाँ पहुँचे टूर्नामेंट के लिए तो उनको क्या लगा कि उनकी जो स्वॉर्ड थी वो वहीं कासल में रह गई है, तो उन्होंने अर्थर को कहा कि उसको ढूंढ के वो लेके आए। Young Arthur flew down the road on his mare and made his way back to the castle. Having reached the gateway, he reined in his horse and battered hard upon the door, but there was no one to let him in. वो वहाँ गए, अपनी घोड़ी पर बैठ करके वहाँ गए, लेकिन वहाँ किसी ने भी उनको, वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो उनको अंदर आने देता। Then Arthur remembered the sword he had seen in the churchyard. I will go to the churchyard, he said, and take that sword with me. अब जो चर्चयार्ड में उन्होंने स्वॉर्ड देखी थी उसको लेने वो वहाँ चले गए। So he rode into the deserted churchyard. Deserted जो सुनसान था. Tied his horse to the stile and went up to the stone. The knights were away at the tournament and the sword as there unguarded. Going up to the stone, young Arthur took the great glistening sword by the hilt and lightly and deftly he drew it out of the anvil. Deftly means बड़ी कुशलता के साथ, बड़े कुशल तरीके से उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। अब वो उस डेजर्टेड चर्चयार्ड की तरफ गए अपने घोड़े में बैठ करके।
अब वहाँ पर उस समय कोई भी गार्ड उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, तो किंग अर्थर ने, जो अर्थर थे, उन्होंने क्या करा, वो जो ग्लिस्टनिंग स्वॉर्ड थी उसको बड़ी कुशलता से वहाँ से एनविल से निकाल लिया। He rode back fast and furious to the site of the tournament, shouting and waving, "See, brother, a sword to your hand. Do not say that I failed you, though your own sword lay behind barren doors." अब अपने हाथ में तलवार को लेकर के वो बहुत तीव्र गति से टूर्नामेंट की तरफ गए और वहाँ अपने हाथ में तलवार को दिखाते हुए उन्होंने क्या कहा कि ये रही ब्रदर तुम्हारी तलवार, अब ये मत कहना कि मैं फेल हो गया, तुम्हारी तलवार कहाँ थी, बैरन डोर्स के पीछे थी। सर के grasped the sword, well satisfied. His eye ran down the sword, and as the glance grew, his cheek paled. He rode on to rejoin his father. "Sir," he cried, his voice trembling, "surely I and none other am chosen to be king of England, since in my hand I bear the sword of the stone." अब क्या कहा उन्होंने कि जैसे ये स्वॉर्ड मेरे हाथ में थी तो इसीलिए मैं भी यहाँ का, इंग्लैंड का राजा बनूंगा, क्योंकि मैंने ये स्टोन से जो है इस स्वॉर्ड को लिया है। At this speech, Sir Ector turned, and when he saw the sword that his son carried, he knew that it was indeed the sword of the stone. अब जब सर एक्टर ने वो स्वॉर्ड देखी तो उनको पूरा विश्वास हो गया था कि ये जो स्वॉर्ड थी वो उसी स्टोन की स्वॉर्ड थी जो वहाँ प्रोटेक्टेड थी। Now tell me, did you pluck it from the stone? He asked. Sir Kay's face fell, but he answered stoutly, "No, I didn't pluck it from the stone. My brother Arthur, who went back to fetch what I had forgotten, brought me the sword." क्या कहा उन्होंने कि ये मैंने नहीं निकाली है, ये किसने निकाली है, मेरे किंग, मेरे ब्रदर अर्थर ने निकाली है। मैं अपनी जो मेरी तलवार थी उसको मैं भूल गया था और ये वहाँ से स्टोन से लेके आया और उसने मुझे ये दी है। Then Sir Ector turned to Arthur. "Tell me, did you pluck the sword from the stone?" The boy confessed how, having found all doors barred upon his brother's sword, and he had hurried to the churchyard and plucked the sword from the stone that rested there. अब यहाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया, यहाँ उन्होंने मान लिया। अर्थर ने, जब सर एक्टर ने अर्थर से पूछा तो उन्होंने मान लिया। उन्होंने क्या बताया कि जो उनके ब्रदर की जो स्वॉर्ड थी वो बंद दरवाज़ों के पीछे थी और इस वजह से जो है वहाँ से वो निकाल नहीं पाए, तो इसलिए जो है वो चर्च यार्ड गए और स्टोन से उन्होंने इस तलवार को निकाल लिया। वॉज नो वन देयर आस्क्ड सर एक्टर टू फॉरबिड द एक्ट। अब सर एक्टर ने उस सब को रोकने के लिए क्या पूछा कि क्या वहाँ पे कोई था नहीं। नो, सेड द बॉय, दे हैड गॉन एवरीवन to the tournament. Then Sir Ector became thoughtful. He made them turn about and ride back to the churchyard that lay some distance behind them. There, young Arthur replaced the sword in the anvil and the stone. अब सर एक्टर ने जो है बड़ी देर तक उसके बारे में सोचा, फिर उसके बाद दोबारा जो है घोड़े पे बैठ करके वो चर्चयार्ड की तरफ गए और जो वहाँ से निकाली थी तलवार, उन्होंने जो स्वॉर्ड निकाली थी वो दोबारा से उस एनविल में रिप्लेस कर दी। "माय सन, ड्रॉ आउट द स्वॉर्ड," सेड सर एक्टर टू सर के, एंड सर के ट्राइड बेंडिंग डाउन, द बेटर टू यूज हिज स्ट्रेंथ। वंस ही स्ट्रॉव मीन्स बहुत कठोर तरीके से प्रयास करना, एंड ट्वाइस हिज मसल्स क्रैकिंग एंड हिज फेस अफ्लेम, but he could not withdraw the sword. अब सर एक्टर ने अपने बेटे सर के को कहा कि यहाँ से स्वॉर्ड निकालो। सर के ने बहुत कोशिश करी, नीचे झुक करके पूरी स्ट्रेंथ लगाई उसको हटाने में, लेकिन वो नहीं उसको हटा पाए। However, when Arthur laid his hand upon the sword, it slid from the stone as a sunbeam across a wall, and when he had replaced it, it stuck as fast as before. अब जब उन्होंने अर्थर को कहा कि वहाँ से स्वॉर्ड निकालो तो उन्होंने बड़े इजीली, जैसे कि वॉल के चारों तरफ सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें आती हैं, इस तरह से जो है वो स्टोन से बड़े आसानी से हट गई और जब उसको रिप्लेस किया तो वो पहले की तरह से बिल्कुल उसके ऊपर फास्ट तरीके से स्टक हो गई। देन सर एक्टर सेड टू द बॉय, "बाय किंग अर्थर्स डिजायर,
you were entrusted to me while yet a baby, and the king would reveal nothing about your parentage. Entrusted means मेरे ऊपर पूरे विश्वास के साथ तुमको सेफ्टी पर्पस के लिए मेरे पास दिया गया था। तो सर एक्टर ने क्या कहा उससे कि किंग अर्थर की इच्छा से उन्होंने जो है तुमको मेरे पास सुरक्षित रहने के लिए भेजा था जब तुम छोटे बेबे थे, और जो राजा था वो तुम्हारे पेरेंटेज के बारे में रिवील किसी भी तरीके से नहीं करना चाहते थे। नाउ आई बिगिन टू थिंक दैट यू आर ऑफ अ हायर डेस्टिनी देन आई थॉट। Let us travel to the Archbishop and tell him of these events. अब उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगता है कि शायद तुम जो बॉर्न हुए हो वो हायर डेस्टिनी के लिए बॉर्न हुए हो, तो इसलिए जो है अब हमें आर्क बिशप के पास जाकर के इस इवेंट के बारे में उनको बताना चाहिए। Then they went to the Archbishop and told him that the sword had found its master. The Archbishop appointed a day for the trial to be made in the sight of all the people. On that day, the princess and knights came together and each tried to draw out the sword as before, but as before, none could so much as stir it. Then came Arthur and pulled it easily from its place. उसके बाद वो आर्क बिशप के पास गए और उन्होंने बताया कि अब जो है जो ट्रू मास्टर है वो स्वॉर्ड का मिल गया है। आर्क बिशप ने जो अपॉइंटेड डे था ट्रायल का, उस दिन सारे लोगों के सामने जो है दोबारा से वो सब किया गया। सब लोगों ने कोशिश करी लेकिन कोई उसको हिला भी ना पाए। फिर अर्थर की बारी आई और अर्थर ने इजीली उसको वहाँ से हटा दिया था। द नाइट्स एंड प्रिंसेस वर टेरिबली एंग्री दैट अ मेयर बॉय एंड फ्रॉम नोवेयर इन पर्टिकुलर हैड बीटन them and they refused to acknowledge him king. Refused करना, इनकार कर देना। They appointed another day for another great trial. 3 times they did this and every time the same thing happened. अब जब इतने easily अर्थर ने उसको वहाँ से मूव कर दिया था तो सबको बड़ा गुस्सा भी आया और सबने जो है सबको ये लगा कि ये तो एक छोटा सा लड़का है और इसकी जो है कोई पहचान नहीं है, कहीं से ये जो है फेमस नहीं है और इसने उनको हरा दिया। तो उन्होंने उसको राजा मानने से मना कर दिया और फिर दूसरा डे अपॉइंट किया गया ग्रेट ट्रायल के लिए। 3 बार ये सब हुआ और तीनों बार सेम चीज हुई। एट लास्ट एट द फेस्ट ऑफ पेंटकॉस्ट Arthur again pulled out the sword before all the knights and the common people. Then the people rose crying with one voice, Arthur shall be our king, has not the sword, and therefore the voice of God revealed him to us. So they knelt before him offering their loyalty. Finally क्या हुआ, जब बार बार प्रयास किए गए, बार बार ट्रायल हुए और हर बार अर्थर जो है इजीली मूव कर दे रहे थे, तो सबकी जितने भी लोग वहाँ पर थे वो सब एक साथ एक आवाज़ में सब ने क्या कहा कि अर्थर ही हमारा किंग है। और भगवान की भी यही मर्जी है कि भगवान ने ये रिवील कर दिया है कि हमारा जो किंग है वो कौन है, अर्थर है। एंड सो अर्थर बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड एंड ऑल गेव हिम एलिजेंस। एलिजेंस मीन्स सपोर्ट, या जो भी हमारा लीडर होता है उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसके फेवर में अपनी लॉयल्टी शो करते हैं, तो उसका मतलब होता है एलिजेंस। जब राजा अर्थर इंग्लैंड के राजा बन गए तो जो भी वहाँ पे लोग थे सब ने उनको सपोर्ट किया और उनके प्रति अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।